Hello everyone. Today we are talking Dr. Ajay Rana, presently a Vice Chancellor of Shobit University. My first question is, sir, what values are most important to you as an education leader, sir? Thank you, Somji. In fact, it's my honor to be the part of this, the fella. And today I feel more proud that you invite me from Meerut to Delhi, and the part of this the forum. So my compliment to you and your organization to consider my candidature for this organization. With respect to education leader definition is not like that you are in the top position in any organization X, Y, Z. That is not the leadership quality. That is about your credentials. That is about your achievement and your education qualification and your experience. That's why you are in the topmost position. But the leadership and the leader means how to nurture the many other person to become a leaders. So leader definition is that you nurture many young professionals or your colleagues so that they will become a leader after 5 years, 6 years, or as per your expertise. For example, that you become a leader in any university in the topmost position after 20 years of experience. If some other person may become the leader after 20 years of experience, what is the difference between you and others? Nothing. They also fulfill the capability. But the leadership is that how you nurture a normal person so that he or she achieve all these milestones, not in the 20 years, but at least 10 to 15 years. So leadership definition, as my point of view, you nurture the other person as a leaders. So that is the definition of a leadership. Second point is that if you are in the top position and some routine work is there, like some government policies, you follow the government policy, then you are not the leader. Some other person guide you, educate you, and you only dance or you only play as per their policies. You are not doing anything. Second point is that there are some governing bodies who guide you how to run the classes, how to run the system, how to make auditorium, what are the prerequisites of the auditorium or the classes. That is not a leadership quality. Means you say that how you work out of the box. If there are around 100% in your community, but out of these 100, you are the one person who work out of the box as compared to 100. That is your leadership qualities. We call the leadership quality. Third point is that always leader work like some crisis management. Okay, that you are in the topmost position in any organization. Okay, if you have some challenges or if you have some crisis, how you respond this problem or how you respond that solution. So my point is with respect to education leader, number one, nurture the leader, like in second command, third in command, and fourth. And second one is that if you have opportunities, if you have the resources, how you work beyond the boundaries. Not only follow the policies, not only follow the system, like if you are the train driver, not like that you drive the train. The point leadership definition means the definition of a leader is that you make a track, not to run the train on the track. Right. So you are the track who make a path and the train and all Shatabdi, Balgadi and the Rajdhani on the same track. Right. So leaders are the person who nurture the leaders and who show the path, like the torch bearer. Right. It is up to the other person how to move ahead. So that is... so what is your key value, sir? What is your key value into that? If I'm talking about Dr. Ajay, so what is your key value as an education leader? I'm the one of the person who achieve many things before when the other persons wait about their retirements. Right. I'm the youngest vice chancellor in the country. Right. I'm the person who have the maximum patent in the publications. I have the person who work beyond the boundaries. Like I'm the one of the founder member of around more than 39 organizations, departments in my university at that time. I'm consulting many IT or ITS companies, not consulting the outsiders, but consulting my alumni. Consulting my good friends, though they are the market players, and today I feel more proud. Would you like to share any story? Many other like Dr. Triveni Singh. He is a cyber cop in the Uttar Pradesh. Yeah, Dr. Triveni Singh. Right now, I always feel more proud whenever one day he come to my office. Dr. Rana, in this the police life,
There's a lot of challenges. Then me and Dr. Triveni discuss a lot of things. Dr. Triveni Singh is a person in the entire country who solved around more than thousands crores of the cases, very minutely. Sometimes we feel that I am become that is our wish during our academics, that I become the IAS, IPS, doctor, engineers. But when I choose the profession with respect to education, I have the multi-personality actor. My students are IAS, my students are the IPS, my students are the bureaucrats, my students are the ministers. Like Dr. Pankaj Singh, the member of this Legislative Assembly from Noida. He was my student. Great, sir. Many other top bureaucrats across the country, they are our students. So we always feel more proud that we nurture the leaders from our side. Point number one, we are not the teachers that we have no job, we have no responsibility, that we join the organization or that we join the education sector. We are responsible to produce the many prime ministers, the presidents, the chief ministers, the bureaucrats as a teacher fraternity, not about myself. So that is a vision. That is, we are the person who create a lot of things. Point number two, I'm in education sector for last 20 years. Many forum person asked to me, quote in Hindi, पढ़े लिखों ने क्या कर लिया? Obviously, they said कि many persons, those who are the top players across the country, they are illiterate. Like Reliance become a Reliance, Tata, Birla, and many others. Then ask the one question to them. Tell me, Tata become a Tata after 170 years? The journey is 170 years. That's why Tata become a Tata. Reliance become a Reliance after 45 years. Then about the Birla. Birla become a Birla after 30 to 40 years. Then about Mahindra and many other. Okay, we are ready. Their parents, their ancestors work very hard. Their situation at that time, there is no competition at that time that they become a leaders. So they are not about so educated, they are not doctored. Now, come to the point. What about the Facebook, Twitter, LinkedIn? They become a leader within a 5 to 10 years. That is the difference between educated and some other person. Today, I find that Mr. Agarwal, who is the CEO of Twitter, at the age of 37, have you find any person in any top organization, those who become the CEO, not about their parent company, but some other company? So that is about the nurture with respect to the leaders or the person who work beyond the boundaries. Facebook, LinkedIn, Twitter, Oracle, IBM, these are the companies who enjoy their life, who earn a money within 5 to 10 years. And all other companies, they spend around 100 years, 200 years, 45 years. I'm not so proud that I'm become a Mukesh Ambani ji. I'm so sorry. I will so proud that my son or I am become the Dhirubhai Ambani. Because my aim is not to become a Mukesh Ambani ji or Anil Ambani ji. Our aim is that become the Dhirubhai Ambani ji. That we have our nurture, we have our responsibilities, we have our resources. And that is a trend in the current scenario. Whenever the many politicians or the bureaucrats, they have said one words. When I was in Oxford, there's the one person asked to me one question. Dr. Rana, now our aim is to become so-and-so organization better than Oxford. Best than so-and-so. Then I said, yeah, it is not possible. It is not possible that you become Oxford, best than Oxford. How it is possible? That is not possible. But yes, you have a quality of Oxford, you have the best practices of Oxford, apply them in your organization, adopt them in your organization and work hard day and night. Not become a new Oxford, but your own identity. And if the young generations or the persons across the globe understand about these facts, then you will find the harmony, you will find the respect, and you will find the motivational factors for the upcoming leaders. So they are not jealous, they are not feel incompetent towards the big players. They feel, okay, they are our mentors and we work better than as compared to the others. So that is the definition of from my side. Right, sir. So the previous question that we asked about the importance for you, as an education leader, was nicely you briefed. So my second question, as a higher education leader from
कंप्लीट द इंडस्ट्री हम लोग जानना चाहते हैं कि मतलब लीडर्स कैसे पैंडेमिक सिचुएशंस के अंदर आप लोगों ने चीज़ों को कैसे मेंटेन किया. सो माय क्वेश्चन इज लाइक हाउ यू हैव बीन कीपिंग द लर्निंग कर्व्स सक्सेसफुली सिंस द पैंडेमिक, सर. प्लीज ओवर टू यू. Thank you, Somji. In fact, that is really a very good question that you asked to me because I like that question. Man, in the many forum, many top leaders asked me the same question. Ki, how you feel that about the pandemic and all these things? Then you believe that my chest become around 0.1 inches, be that expanded. Okay, then I feel more proud. God gives such opportunity to us. We are witness about that the pandemic in 1909 or around to 1937 at the West Bengal and others. During the Agra or during the King's Empire, we are witness. We have learned a lot of things about the pandemic only in the books. Right. But God gives such opportunity. I'm so sorry I use the word opportunity. God gives such opportunity to us ki how we fight against such pandemic. Right. Because we the country belong to one of the oldest country across the globe, and I feel more proud because that is the second largest country with respect to the population, and how our government such minutely and on the large scale control such pandemic. Point is that yes, I feel more proud that I am the part of such generation. As a teacher, when the government declared that the pandemic can close all the universities and the colleges in the month of March, and I feel more proud to associate with my previous organization, MIT University. And at that time, Dr. Atul Chauhan, I proudly announced from your forum that at that time we are the first university in the country after second day when all shut down the colleges, and we run the entire program through digitally. Right. So it is up to us that we are not wait for the pandemic or the crisis. As you the previous question asked, the leadership definition. Leaders always thinks positive and negative like a cell end. There's the positive and the negative ends. Right. Leaders' motivation factors is that you are the positive point. Right. What about negative? If you replace these plus sign by one, so they are the two negatives. Right. If you like combine this, that is the addition. If you like this, that is a multiplication. So that is about your power enjoyment. If you enjoy this power as a plus or as a multiplication or as a parallel. Right. But if you make a parallel, they are the two negatives. Right. So that is not your task. That is not your cup of tea. That they are the two negatives. That is your cup of tea. How to make this plus into the multiplication. Right. So leaders always think not only the positive but the negative like a cell point of view. That's create a law of energy. Second point is that always think, if you have a one positive, think about their negative prospects too. Not only positive, negative prospects too, because your knowledge, your system may affect around thousands of persons across the globe. Sorry. It is your responsibility, like during pandemic, how to deliver your quality, how the food supplier or the chain supplier deliver the food to the doorsteps, how the medical facilities affects or serve the nation. We all plays a very important role. We are the fight bearer at that time, flag bearer at that time. We are the torch bearer at that time. We are the fighters at that time. How we help each other. Right. So as a teacher, as a guru, as a head of my university at that time, or right now current time, or my portfolio, right, it is our responsibility how honestly we do our duties. Right. That's why all are like nurses, doctors. What about you? You give the salary to all of your employees during pandemic. Right. We salute to you. Right. Because you play such a role, important role. Right. You are the person who give the salary on time. Right. That's why their family may survive. Right. If you are not give the salary on time, what about the others? So you are the really the brave persons during the pandemic. Right. Rickshawala, drivers, food suppliers, educationists, doctors, nurses, transportations, education ministers, prime ministers, presidents. But it is up to us how we will contribute our duties, our responsibilities with honesty. So again, I feel more proud that I am in the such generation, that we are witness about the pandemic, when in the history may be repeated, the one word is there, the
one of the most important word during on that pandemic, COVID-19. So we are the part of this situation. We are the part of this pandemic. So that is not about the crisis. That is a situation. God give us the challenge. The God, Almighty God, give us the challenge ki how to this effect, because during pandemic you realize that we always realize the values of our family. Most important. We realize the values of our neighbors and with respect to our colleagues. We recall so many we things rec- that we left it behind. Yes, we left it behind. So we are so fortunate. We are thank to Almighty God. But I'm here to so sorry that we are not the person who lost their lives. I'm so sorry because that is not a point. But we are so fortunate that we save the lives of millions of the peoples across the earth. Right, sir. Thank you very much, sir. थैंक यू वेरी मच सर. आपने जो अपने सक्सेसफुल मंत्रा शेयर किए कि पैंडेमिक में क्या चीज़ें हम लोगों ने खोई, क्या चीज़ें हम लोगों ने पाई, और सच में ये बहुत बड़ी बात है कि आपने बताया कि गॉड ने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम अपने आप को चेक कर पाएँ कि बैड से बैड सिचुएशन के अंदर हम किस तरह से सर्वाइव करेंगे, और आज हम आमने सामने बैठे हैं और बात कर रहे हैं, तो ये शायद भगवान का शुक्र है और ये हमारा सक्सेस है कि हमने किसी चीज़ को अचीव करके और उस पैंडेमिक को पार करके एक सक्सेसफुल और एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में आज आप और मैं बैठ करके बात कर रहे हैं. मैं जानना चाहूँगा सर, लाइक बीइंग अ रिसर्चर, अजय सर क्या हैं और क्या उन्होंने चैलेंजेस फेस किए, व्हाट काइंड ऑफ चैलेंजेस यू फेस्ड एट अ टाइम ऑफ बीइंग अ रिसर्चर बिकॉज यू कंप्लीटेड योर रिसर्च, एंड आपके सक्सेस मंत्रा क्या होंगे आज के फेलो रिसर्चर्स और आपके मिलियन ऑफ फैंस के लिए सर, प्लीज़ सर. थैंक यू सोम जी. इनफैक्ट जब भी आप कोई काम करते हो तो वो इसलिए नहीं पहचाना जाता कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो. वो इसलिए पहचाना जाता है कि दुनिया आपको किस नाम से पहचानती है. आप कितना भी अच्छा बोल लो, इफ़ यू आर द गुड स्पीकर, इफ़ यू आर द गुड मोटिवेटर, बट एंड ऑफ द डे योर क्रेडेंशियल्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. We always remember the top scientists, Thomson Edison, Einstein, or top philosophers like the Mahatma Gandhi ji, top leaders, and many others. Why? Because about their knowledge, about their views. Same with respect to researcher. Yes, research means about the publications. Research means not only research papers, but the publications, patent, योर प्रोजेक्ट्स. अगर आपको एजुकेशन फर्टिनिटी में रहना है तो आपको इन सब चीज़ों को इम्प्रूव करना होगा. राइट. नाउ पॉइंट ये आता है कि आपको कैसे उसको इम्प्रूव करना है. उसके लिए आपको अपने को जागरूक रखना होगा. उसके लिए आपको अपने सिस्टम को चेक करना होगा कि क्या आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, चाहे वो गवर्नमेंट की हैं, प्राइवेट की हैं, सेमी गवर्नमेंट की हैं, पब्लिक सेक्टर्स की हैं. Because I find that many of the person, those who are working in the private sectors, they always criticize the government. Okay. कि we have no funds, the government always make a सोतला बिहाव करती है प्राइवेट के साथ. Right. पैसा तो हमसे कमाती है मगर गवर्नमेंट हमें कुछ देती नहीं है. जी. ऐसा नहीं है. अच्छा सर. आपको आइडेंटिफाई करना होगा. अगर आपके कुछ क्रेडेंशियल्स ही नहीं है तो गवर्नमेंट आपको प्रोजेक्ट क्यों देगी. राइट. सो आपको अपनी जो रिसर्च है उसको आइडेंटिफाई करना होगा, अपने स्ट्रेंथ एरिया को आगे की तरफ बढ़ाना होगा. और जो कंपटीटर्स हैं, वाई मैनी अदर यूनिवर्सिटीज़ लाइक, अभी तो आप सिर्फ नैक और NIRF तक की बात कर रहे हैं. आफ्टर दैट देयर द लॉट ऑफ अदर्स एक्रेडिटिंग बॉडी एजेंसीज. इफ़ यू आर गो विद एनी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, आफ्टर सम टाइम यू विल फाइंड दैट 12B मस्ट बी देयर. Means you are not only the university or the NAC accredited college. After NAC means you go with the 12B. After 12B you go with some other international accreditations. Right. Like in India, you are not the easy person that you run many distance learning courses. They are the always ifs and buts. If you are in top 100, then you are eligible to apply for the distance education. Right. Or 100, 200 or many other things. Right. So they are linked each other. Right. If you go with individuals like mine, about you asked the question to me, कि Dr. Rana, what about your research credentials and what are the importance of research in your life? Why I am the youngest vice chancellor in the country due to my credentials, Right. not due to any like my father, my parents, or my, we call the godfather, god brother, god sister. Right. I have no. Right. I am right now
hold the position of vice chancellors on my credit, On your credit. on my merit, Right. not any credit by the any other person. Right. What about my credits? What about my merits? My publication, Right. my work culture, my research, my patent, my books publications, what type of work that I have done with my previous organization, and what about my mission towards the education sector after 5 years or 6 years or after 20 years. Right. So the research is not related to only and only that you are writing good papers. Research means that how you take the project from the private sectors, how you take the project from the government sectors, how you contribute something good to the society, and how that your or where you are associated that organization may sustain. Right. Most important. So research means that yes, for my credentials now I'm the vice chancellor. You will find me. That is credentials. I am not joined anywhere below than the vice chancellor job and come again to the profession. All these things, but research always continuity going on. For my message to all my the young professionals or the young persons or the educationists or the lecturers, please register yourself with the many accrediting agencies like your FELA, be the part or the member of the FELA organization or the IEEE as per your comfort zone. That is the one of the point that how many organizations you are associated with you, like I'm associated with your organization, some other things. Point number 2, always register yourself with respect to the PhD guide, if you are eligible. If you ask the question to me, Dr. Rana, how many publications with you? Then I said, okay, I have 200 publications. You said, wow, sir, how is possible 200 publications with you? Your question is that, sir, tell me how many publications with you before your PhD and how many publications with you after your PhD? That may be the correct question. So before my PhD, I have around 39 plus publications. Right. That is my own journey. Right. After my PhD, I have completed around under my supervision, more than around 20 students completed their PhD under my guidance. Okay. So if one scholar generate around 10 papers, so 10 and multiply by 20 means 200 papers. Right. So that is my continuity in my research area. So publication, number of publications not plays a very important role. But the important role is that about the contribution to the society, and that is really a research. What was your research topic at time of this, your PhD, sir? My PhD is developing some application tools using Java technology. Okay. So Java technologies or the software engineering, because I was expert in software testing and software engineering. Okay. So we have designed TSMA, Okay. test suite minimization algorithm. Okay. So it is up to you what are the different testing parameters, how you judge that your model, how does your prototype work best as compared to the others. Right. PhD is not like that. That there are the two difference between PhD and the invention. Many of the person like in our country, so there the research two type. One is the parallel and second is the sequential. Okay. Sequential research means one person who start the research work, complete their PhD, stop, then second take the responsibility and move ahead. Okay. So that is a sequential research कि एक ने बढ़ाया, अपना काम खत्म किया, अचीव किया, वो आगे बढ़ गया. पैरेलल रिसर्च इन इंडिया जो बहुत से लोग करते हैं, वो क्या करते हैं कि एक ने ट्यूबलाइट बनाया तो दूसरे ने एलईडी बना दिया, किसी ने एलसीडी बना दिया. सो दोनों दे आर द बोथ द सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ लाइट, बट दे आर द पैरेलल. दोनों का काम क्या, बल्ब का भी काम होता था लाइट देना, जी. एलसीडी का भी काम है लाइट देना, Right. एलईडी का काम भी है लाइट देना. Right. बट तीनों में क्या है, एनर्जी की एफिशिएंसी, पावर फास्ट है. Right. इन्वेंशन क्या है, you know that Microsoft, Google, Oracle, they are based on invention and the patents. They are not research. They're not research. They are invention and patents. वो इतना पैसा खाते हैं, जैसे आपने देखा होगा, there's the biggest deal in the world, $1 deal by Microsoft and the IBM. Right. जितने आप सर्वर ऑन करोगे, एक पैसा $1 जो है वो IBM माइक्रोसॉफ्ट को जाएगा. बिगेस्ट डील लाइक अबाउट द एप्पल, आपने मोबाइल देखा होगा, आपका एप्पल का फ़ोन है या सैमसंग का, आपको लेफ्ट टू राइट ऑन करना है, किसी का राइट टू लेफ्ट है, किसी का बॉटम से टॉप में है, किसी का टॉप से बॉटम में. दीज आर द पेटेंट, दीज आर द इन्वेंशन, कॉपीराइट्स आप दूसरा आदमी नहीं कर सकता. Okay. तो ये रिसर्च बहुत है इंडस्ट्री में. जी. तो इंडस्ट्री का काम पीएचडी नहीं कराना होता. जी. एजुकेशन में काम क्या है कि आपने पेटेंट तो बहुत सारे, आप इंडिया में देखो जी. हजारों पेटेंट यूनिवर्सिटीज़ फाइल कर देती हैं. जी. बहुत से अपनी को क्लेम करती हैं, वी आर द फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन द कंट्री हु फाइल 1000 पेटेंट, 6000 पेटेंट्स, 1000 पेटेंट, बिफोर ऑल आईआईटीज और आईएम्स वी आर द बेस्ट. जी. बट उसमें से
अप्लाई कितने हुए हैं? जी यू कांट बिलीव, नॉट मोर देन 2%। आपने एक रेस में तो भाग लिया आप, जी मगर रेस भागने के बाद वो रेस ओलंपिक की नहीं थी, जी 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 वो तो मोहल्ले की रेस थी। ओलंपिक से जब मेडल लेके आओगे तभी तो फायदा अभी है, फायदा है। मोहल्ले की दौड़ में दौड़ के क्या करोगे? जी 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 बट आज हमारे यहाँ पर सिर्फ ये कि वही भाग लगी हुई है कि तू ऐसे भाग तो मैं और तेज भागूंगा, जी ऐसे भागेगा तो मैं और तेज भाग। लोगों ने तो अब यहाँ भी शुरू कर दिया है कि वो बी टेक के प्रोजेक्ट, एम टेक के प्रोजेक्ट को भी वो पेटेंट में कन्वर्ट कर रहे हैं, अच्छी बात है। बट उसका आउटकम क्या आ रहा है? आउटकम क्या है? आप 20,000 रुपये, Getting something or not with that? अगर वही 20,000 रुपये हम उस बच्चे की ट्रेनिंग पे लगाते, वही, अब पेटेंट तो फ्री में तो फाइल नहीं होता, गवर्नमेंट भी पैसे लेती है जी भाई। आईपीआर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो पैसे फ्री में थोड़ी ना आपको दे देगा। जी 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 फिर जो आपका कंसल्टेंट उसको पेटेंट को ओबे करेगा, फाइंड आउट करेगा, वो भी आपसे पैसे लेगा। जी ये दोनों काम करने के बाद ऑर्गेनाइजेशन ने आप पे कम से कम 15 से 20,000 रुपये लगाए, हाँ उसके बाद आपका आउटकम क्या मिला? सिर्फ एक पेटेंट, सिर्फ एक बुक में नाम। तो ये मेरा कहना है कि आपको थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना होगा। आपके सक्सेस मंत्रा क्या थे सर अपना रिसर्च कंप्लीट करने के लिए? मेरा, जब मैं पीएचडी कर रहा था तो मेरे गुरुजी ने यही कहा था, घर बैठ के काम नहीं होता है, जी आपको कुछ नया करना होगा। जी हम गए, उन्होंने रास्ते दिखाए। मेरे डॉक्टर चंद्र मोहन जी, हु इज़ द फादर ऑफ फजी लॉजिक इन आवर कंट्री, ओके जो IIT रुड़की से थे, राइट उन्होंने बहुत कुछ सिखाया। ऐसे इंसान मैंने नहीं देखे कि अगर मैं कितने भी जन्म लूँ और मुझे ऐसे लोग मिलें। मेरे दूसरे को गाइड डॉक्टर योगेश सिंह, जो भगवान की तरह हैं। मेरे एक साथी होते थे, हैं अभी भी, डॉक्टर प्रवीण चंद्रा, जी जो अभी IP यूनिवर्सिटी में हैं। तो हमें उस टाइम, हम बच्चे थे, उन्होंने सिखाया, रास्ता दिखाया। तो हमारा सिर्फ एक ही पॉइंट था कि आंख बंद करके भागना शुरू कर दो। गुरु गोविंद दाहू खड़े, काके लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गुरु गोविंद दियो बताए। सोम साहब, पॉइंट ये रहता है कि जो आपका गुरु आपको सिखा रहा है, आपको टारगेट्स पूरे करने हैं, वहाँ तक भागना है। जी आजकल गुरु को लोग बाग चैलेंज कर देते हैं कि आपको इतना आता ही नहीं है। अगर जिस दिन कोई आदमी किसी गुरु की रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर दे, तो आप बिलीव करेंगे उसकी रिस्पेक्ट करने के लिए लाखों लोग खड़े हैं। तो आप पहले अपने एक को मेंटर मान लो, एक को गुरु मान लो। जी मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में गया, उस टाइम इन्फोसिस का कोट कर रहा हूँ बिकॉज आपके चैनल से ये लाइव हो रहा है। जी तो मैसूर कैंपस का इनाग्रेशन था, तो हम लोगों को बुलाया था उस टाइम। जी तो 2 पॉइंट मुझे बोले गए, देखिए जो है कैंपस कितना क्लीन है। अच्छा सर बहुत क्लीन था, कहीं गंदगी नहीं थी। जी जी सही बात है। जी तो मुझे मेरे स्टूडेंट ने कहा, सर ऐसा ना, आप MIT में भी ऐसा होना चाहिए। ओके मैंने कहा बिल्कुल होना चाहिए, हम तो करते हैं। जी बट एक बात आप मुझे बताओ बेटा, जो पैसा देता है ना, वो हमेशा पावर में रहता है। तो यहाँ आपको पैसा कौन देता है? इन्फोसिस। तो आप कैंपस को अच्छा रखोगे। जी वहाँ हमें पैसा कौन देता है? आप लोग फीस देते हो, तो आप लोग हम पे पावरफुल रहते हो। तो हमने तो जो जो देता है ना, ज़रा गंदा करके देखो। इन्फोसिस ने CCTV लगाए, नेक्स्ट डे निकाल देगा आपको। राइट मगर वहाँ आप हमें पैसा देते हो, राइट तो क्या हम गंदा करते हैं? क्या हमने वहाँ डस्टबिन नहीं रखे? क्या हमने वहाँ जगह नहीं बनाई? जी सब चीज़ बनाई है। आप वहाँ जाके डालो उसमें। जी अब इन्फोसिस आपको पैसा देता है, तो आप गंदा नहीं कर सकते, जी क्योंकि आप गंदा करके दिखाओ। जी जी जैसे ही गंदा करोगे, नेक्स्ट डे आपको आउट कर देगा। और हम अपने MIT में, जहाँ जैसे मैं शोभित में हूँ, तो हम अगर गंदा करते हैं, मैं गंदा नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं नैपकिन लूँगा, पेपर नैपकिन लूँगा, कुछ सामान लूँगा, तो डस्टबिन जरूर डालूंगा, जी क्योंकि मुझे मेरा ऑर्गेनाइजेशन पैसे दे रहा है। मैं गंदा नहीं, मगर आप पे डिपेंड, आप हमें दे रहे हो ना। स्टिल यू आर डूइंग इट। तो आपको क्या करना, आपको क्या करना है? जो देने वाला होता है ना, वो समझता है कि मैं पावरफुल हूँ। अब वो होता है पावरफुल। क्यों पावरफुल होता है सोम जी? मैं हमेशा अपने बच्चों को बोलता हूँ, दैट इज़ एप्लीकेबल टू मी, नॉट एप्लीकेबल टू अदर्स, वाइस चांसलर, दोज आर लिसनिंग हियर। राइट मैं बहुत अच्छा फैक्ट आपको बोलना चाहूँगा। मैं एक वाइस चांसलर क्यों हूँ? ड्यू टू माई स्टूडेंट्स। जब वो पैसा देते हैं तो मेरा घर चलता है। जी जब वो पैसा देते हैं तो मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं ना भाई, वो देते हैं, मुझे सैलरी मिलती है। जी 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 बिल्कुल तो जब मेरे बच्चे फीस देते हैं, उनसे मेरा घर चलता है, तो मुझे उनके लिए थैंकफुल होना चाहिए। तो बच्चे हमेशा, जो आपका जो पॉइंट था, बच्चे हमेशा बच्चे होते हैं। मैं यह मैसेज आपके प्लेटफॉर्म से देना चाहूँगा कि जब भी कोई बच्चा, कोई भी इंसान पढ़ रहा हो, वो अपनी एज को, अपने एक्सपीरियंस को घर रख के आए, वो सिर्फ और सिर्फ बच्चा बन के समझे। तो क्या जो रिसर्च फॉलोअर हैं उनके लिए भी सर यही एक है, जो भी फेलो रिसर्चर्स हैं, अगर कुछ आपको अभी असिस्ट कर रहे हैं, उनको क्या अभी इस पैंडेमिक सिचुएशन के बाद, या फिर करंट इस टेकी एनवायरनमेंट में
उनको मैसेज देंगे कि हम रिसर्च में आपको ये की पॉइंट्स ऐड करने चाहिए, आप एक अच्छी रिसर्च कर पाओगे? अब तो रिसर्च में बहुत सारे इतने सारे चैलेंजेस कर दिए हैं गवर्नमेंट ने। पहले कोर्स वर्क निकालो, ओके। अब आप बहुत अच्छे रिसर्चर हो, आपने 4 पेपर ही नहीं निकाल पाए तो कैसे रिसर्च कर लोगे? जी। फिर आपने कंडीशन रख दी स्कोपस में पब्लिकेशन होने चाहिए, वेब ऑफ साइंस में पब्लिकेशन होने चाहिए। अब वो पर्सन क्या सोचेगा, यार मेरे पास नॉलेज तो बहुत है बट पेपर मुझे कहाँ छापने हैं? मैं अगर इस पेपर को सोसाइटी में छापूंगा तो पहले आपको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। राइट। अब मेंबरशिप लोगे तो भी आप उस पेपर छापने के लिए आपको चाहिएगा। फिर आप बोलेंगे नहीं ठीक है, वर्ल्ड क्लास इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी यहाँ छापता हूँ तो उसके लिए आपको इन्वायरमेंट चाहिए, फैसिलिटी चाहिए। राइट। तभी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, सारे आईआईटीज़ और सारे एनआईटीज़ और सारे आईएम्स को काउंट कर लो, सबको मिला लो। राइट। आईआईटी, एनआईटी, आईएम्स, राइट। इन सबको मिला लो। जी। इन सब ने मिला के कितने प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री और प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री दिए हैं आज तक? राइट। भाई इतने सब कुछ रिसर्च तो होना चाहिए ना एक तो भाई होना चाहिए। एक दो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर तो आ जाने चाहिए थे। जानना चाहिए, सही बात है। ऑब्वियसली इतने साल से पुराने हैं भाई, टॉप हैं, नहीं आ पाया, कोई नहीं आ पाया। मगर पॉइंट ये आता है कि रिसर्चर आईआईटीज़ में अब होता है, जैसे हम लोग देखते हैं जो वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़ में होता है, आप पीएचडी करना चाहते हैं कि मुझे तो पीएचडी जो है मैंने अब बीए किया हुआ है या मैंने एमए किया हुआ है, मैंने एमए किया है कॉमर्स में मगर मैं तो पीएचडी कंप्यूटर साइंस में करना चाहता हूँ। आप बोलेंगे आप नहीं कर सकते, क्यों? प्री रिक्वेस्ट होनी चाहिए, 50% मार्क्स होने चाहिए, वो 50% मार्क्स होने चाहिए मिनिमम, जी। और आपका जो है वो जो पोस्ट ग्रेजुएट है वो कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए राइट। या उससे रिलेटेड फील्ड में होना चाहिए। कहाँ से इंटरडिसिप्लिनरी आएगा सर? आपने पहले उसको रोक दिया। जी। फिर दूसरी बात, इतने सारे एंटरप्रेन्योर कहाँ से निकल रहे हैं? क्या नारायण मूर्ति, नंदन निलकानी जी, असीम प्रेम जी, टाटा साहब, बिरला साहब, मुकेश अंबानी जी, धीरू भाई अंबानी जी जो थे या हैं वो सारे डॉक्टरेट हैं? अगर वो डॉक्टरेट करने पे आ जाए, पता नहीं कितनी तो डॉक्टरेट उनके हर साल निकलती हैं इतनी सारी रिसर्च लैब में से। राइट। उनका फोकस डॉक्टरेट बनना नहीं है। तो हमें रिसर्चर को ये सोचना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये सोचना है कि रिसर्च के लिए कोई बाउंडेशन नहीं होना चाहिए, माइंड ओपन होना चाहिए। माइंड ओपन होना चाहिए। और आप पहले दिन ही टॉपिक रिसर्च का बता देते हो कि आपका टॉपिक ये है। मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ नाम नहीं लूँगा, कुछ आईआईटीज़ में होता है वैसे कि आप रिसर्च करो और सब लास्ट डे में आके आप बोल दो कि मेरा टॉपिक ये है। ओके। अच्छा लगता है। अब रिसर्चर फ्रीडम के साथ घूम रहे हैं, वो काम करेगा, पब्लिकेशन करेगा, वो देखेगा कहाँ क्या है, उसको पीएचडी मिलती है, अवार्ड होती है। तो हम क्या है यहाँ पहले इसको अवॉइड कर देते हैं कि नहीं आप 3 ही बार अपना पीएचडी टॉपिक चेंज कर सकते हो, 2 ही बार कर सकते हो। उसको रिसर्च नहीं बोलते, उसको एक बोलते हैं एक डिग्री और। यूजी कर लो, पीजी कर लो, और पीएचडी कौन करेगा? जिसको एजुकेशन में रहना है। राइट। नहीं तो नंदन निलकानी जी, नारायण मूर्ति जी, असीम प्रेम जी सभी पीएचडी ना कर लेते, पीएचडी कर लेते। तो क्यों नहीं करते? राइट। तो उनको इस एकेडमिक में रहना है, उनको ऑनरी डॉक्टरेट बहुत मिलती है। राइट। शाहरुख खान जी को मिली हुई है, आपके जो है सबको मिली है, बहुत सारे लोगों को ऑनरी डॉक्टरेट मिली है। राइट। बट वो करते क्यों नहीं है? भाई इतनी अच्छी कलाकारी करते हैं। अगर मैं कहूँ शाहरुख खान का जो एक दिलवाले दुल्हन ले जाएगा जो स्टंट वो करता है, उसी पे आप डॉक्टरेट कर लो। मैं कह रहा हूँ आपको, किसी ने सोचा ही नहीं अब तक वो डॉक्टरेट करने की। वो उसी एंगल पे डॉक्टरेट कर ले कि वर्ल्ड का सबसे बेस्ट साइड एंगल क्या है, लव एंगल, लव एंगल क्या है? तो वो शाहरुख खान जी का है, उसे पीएचडी कर लो। राइट। आप सलमान खान पे कर लो कि हर मूवी में वो देखो अपनी चेस्ट दिखाते नहीं दिखाते, जी। आप उसे पीएचडी कर लो। राइट। चॉइस तो मास कम्युनिकेशन के बच्चों को, इन सबको तो फॉरेन कंट्रीज़ में ये पॉइंट आता है बियॉन्ड द बाउंड्री, उसको बोलते हैं रिसर्च। उसको बोलते हैं। डॉक्टरेट ऑफ फिलॉसफी का मतलब या आपके पास पीएचडी का मतलब ये नहीं होता कि एजुकेशन में रहने के लिए लोगों ने ऐसी धारणा बना रखी है। राइट। और अब तो बहुत टफ है, मतलब आपने रिसर्च को दबा दिया कि पहले आप रिसर्च मेथोडोलॉजी करो, फिर आप क्वांटिटी टेक्निक करो, फिर 2 पेपर पढ़ो, फिर आना रिसर्च की बात करने। भाग जाएंगे सब लोग। अब मैं आपको बोलूँ कि आपको सोम साहब एक क्यूटी का पेपर क्लियर करना है, 4 बार तो आप हंसोगे, राणा साहब ये क्यूटी तो पढ़े हुए बहुत दिन हो गए, कौन पढ़ेगा? बिल्कुल। मैंने कहा एक आपको जो है मैथमेटिक्स का रिसर्च फाउंडेशन का पेपर निकालना होगा। राइट। सर पीएचडी आपको मुबारक हो, कौन करेगा? फिर आप क्या बोलोगे? सर कोई ऐसी चीज़ बताओ ना, कोई ऐसी यूनिवर्सिटी हो जो ऑनरी डॉक्टरेट देती हो। राइट। तो फिर आप अच्छे रिसर्चर नहीं बन पाओगे। मतलब अल्टीमेट पॉइंट निकल के ये आता है कि अभी जो रिसर्चर रिसर्च कर रहे हैं वो सिर्फ वही कर रहे हैं जिनको एजुकेशन में रहना है।
ओवरऑल तो मेन मैं मानता हूँ कि 90% से मेरा अपना जो ऑब्जर्वेशन है 90 से 95% लोग सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं। मेरी कंट्री में तो, मेरी अपनी कंट्री में या तो कोई प्रमोशन लेने के लिए कर रहे हैं या उसको कंपनी में पीएचडी कर लोगे तो कुछ पैसा मिल जाएगा, साइट चेंज हो जाएगा, राइट या कोई पीएचडी जो इंडस्ट्री वाले कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं सेकंड जॉब क्या होगा, राइट भाई सुकून की ज़िंदगी जीनी है। राइट वो क्या कहते हैं, एजुकेशन सबसे सुकून का प्लेटफॉर्म है। राइट रिटायर हो जाएंगे कंपनी से और फिर जो है किसी कॉलेज में जाएंगे, वहाँ के प्रोवीसी बन जाएंगे, एवीसी बन जाएंगे, भाई इंडस्ट्री का 20 साल 40 साल का एक्सपीरियंस होगा। वहाँ जाके बेचारा जो 20 साल से आया था उसकी नौकरी खा जाओगे। अब आप अगर यही चीज़ देखो, अगर किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर ब्यूरोक्रेट होगा जिसको ये नहीं पता कि क्या से चलाया था, तो क्या यूनिवर्सिटी चलाएगा वो? तो जगह पर है वो गलत, वो मैं उसको ये नहीं बोलूँगा, अपना वो गवर्नमेंट का डिसीजन है, वो वहाँ मैं नहीं जाऊँगा। वो अच्छा उनका, देखो जिन्हें कहा है बहुत सोच समझ के कहा होगा, बट मैं इस बात से एग्री नहीं करता। दर्जी का काम दर्जी को करना चाहिए तो हलवाई का काम हलवाई को करना चाहिए। अब हलवाई वाला काम अगर वो दर्जी का काम, कपड़ा तो काट देगा वो, जी बट पहने का कोई जो वो, तो उसको कोई डिज़ाइनर बोल देगा, राइट कोई बोलेगा वाह इसमें तो ऋतु बेरी आ गई, इसमें तो जो है मनीष मल्होत्रा आ गया। राइट मगर उसको गांव वालों को पहना के देखना, बोलेगा अरे ये कोई कपड़े पहने जाते हैं। राइट आप जीन्स को यहाँ से फाड़ के पहन के देखो, मनीष मल्होत्रा के लिए आप कितने उसको ताला क्लैपिंग करोगे, राइट बट वही आप गाँव में पहन के चले जाओ, राइट 10 आदमी आपको देंगे, बोलता गरीब हो, कितने गरीब हैं, कपड़े फटे हुए बताओ बेचारे। तो सोच आपकी है, उसको आप कहाँ लेके जाते हो। तो इंडिया में जो इंडस्ट्री से लोग कर रहे हैं, जो मैं अपने जितने लोगों से आज तक मिला हूँ जो पीएचडी कर रहे हैं, उनके सिर्फ दो ही कारण हैं, सेकंड इनिंग क्या होगी, और जो एजुकेशन में कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं भाई नौकरी में चली जाए, क्योंकि अब तो एआईसीटी यूजीसी सब ने कंपल्शन कर दिया है कि पीएचडी तो मस्ट करनी होगी। तो अजय सर किसको कहते हैं कि एक्चुअली कौन है पीएचडी में, किस तरह के लोग पीएचडी करें आपके हिसाब से? आप जिनको फेलो मानेंगे या फिर आपके अंडर जो रिसर्च करेंगे, आप किसे देखते हैं कि मेरे पास ऐसे लोग आए ये रिसर्च करेंगे सर? उसमें टाइम लगेगा अभी हमारे यहाँ थोड़ा अभी मेंटलिटी और जो सोच है वो ऐसी नहीं है कि आप वो चीज़ उम्मीद रख सको कि जो हम बोले कि हाँ भाई ऐसा है, उस पर थोड़ा सा टाइम लगेगा। बिकॉज जो आपने क्वेश्चन पूछा 90 से 95% तो लोग पीएचडी वही करते हैं जिनको सेक्टर में रहना है, सेक्टर में और कुछ लोग वो करते हैं जिनको सेकंड इनिंग खेलनी है। राइट मतलब हो सकता है कि वो 60 साल के बाद वैसे पता नहीं क्या सिचुएशन आ जाए, राइट राइट मगर वो पीएचडी करेंगे फिर, तो वो इसलिए करेंगे कि सेकंड इनिंग भी खेलनी है हमें। राइट तो रिसर्च का बहुत बड़ा ना, मैं ही चाहता हूँ आपके प्लेटफॉर्म से ना कहना कि गवर्नमेंट को ना ये जो पढ़ाई वाला जो कॉन्सेप्ट है जो NEP 2020 दिया है, जी अगर रियली में गवर्नमेंट चाहती है कि रिसर्च हो तो पीएचडी का टॉपिक सबसे लास्ट में होना चाहिए, जब बंदा अपना रिसर्च लेके आए कि मैंने कुछ नया किया, और वहाँ कोई बाउंडेशंस नहीं होनी चाहिए। इसको बोलते हैं इंटरडिसिप्लिनरी। अब जो एजुकेशन में किसी ने अगर कोई ग्रेजुएशन किया, सपोज उसने बीएड किया है, एमएड किया है, वो चाहता है कि मैं इस एजुकेशन को आईसीटी से कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो आईसीटी से करे ना, कुछ इनोवेशन लेके आए ना। राइट अब मैं चाहता हूँ मेरे इस स्पेक्स के अंदर ना स्पीकर्स हों, थर्मामीटर हो, आपका जो है बैंड, आपका जो ईयर बैंड यहाँ लग जाए मेरे यहाँ पर, मेरी बॉडी का टेम्परेचर यहाँ बता दे, ओके मैं इस चश्मे को पहन के जाऊँ, मुझे लगे कि सामने वाले को तो कोविड है, मेरे चश्मे का कलर चेंज हो जाए, मतलब मैं अंधा हो जाऊँ, आपको देख ही ना पाऊँ। ऐसे बोलते हैं इन्वेंशन होना। सपोज आपका टेम्परेचर 100 एंड अबाव है या आपका 102 टेम्परेचर, तो जो मैं स्पेक्स लगाऊँ और आपको देखूँ तो मेरे स्पेक्स का कलर क्या हो जाए, चेंज हो जाए, चेंज हो जाए, और मैं बोलूँ कि इसको तो कोविड है, कोविड है, तो जब मैं देखूंगा ही नहीं आपके पास तो मैं जाऊंगा ही नहीं। राइट ये कौन सोच सकता है? अब उसको जिसने स्पेक्स बनाता है वो क्या सोचेगा, ये वो सोचेगा। मैंने ऐसे रिसर्च बहुत किए हैं। जी आप हैंडल पकड़ लो दरवाजे का, मैं आप मेरे पास जैसे ही आओगे मेरे मोबाइल पे टेम्परेचर आ जाएगा कि आपका टेम्परेचर कितना है, ओके तो मैं आपसे हाथ ही नहीं मिलाऊंगा। ये काम एक एजुकेशन के लिए हाँ यूजी पीजी मस्ट होना चाहिए, बट पीएचडी के लिए कोई बाउंडेशंस नहीं होनी चाहिए, मेरा ये रिसर्च के पॉइंट ऑफ राइट व्यू से। सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच अजय सर। आपने रिसर्चर्स के लिए जो मैसेज दिया और जो अपना जर्नी शेयर किया कि बीइंग अ रिसर्चर व्हेन यू वर स्टूडेंट, लाइक हाउ यू कंप्लीटेड योर रिसर्च, और एक्चुअली रिसर्च क्या होनी चाहिए, इनोवेशन किसे कहते हैं, जो आपने बताया वो मुझे लगता है कि आपके फॉलोअर्स को और व्यूअर्स को बहुत पसंद आना चाहिए। कोई भी इसमें कमेंट या फिर कोई डिस्कशन आता है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है सर से, लाइक व्हाट इज़ द बेस्ट टीचिंग मैथोलॉजी as of now and for the future? Future is a kind of, I'm not talking about last coming 30 years or 40 years. I'm understanding maybe by tomorrow. आज हम जिस एनवायरनमेंट में बैठ करके बात कर रहे हैं उसके लिए बेस्ट टीचिंग मैथोलॉजी क्या है और आने वाले टाइम के लिए टीचिंग मैथोलॉजी क्या है सर, प्लीज़। थैंक यू मिस्टर सोम शर्मा। इनफैक्ट जो टीचिंग मेथडोलॉजी है जो
in the Indian system as well as the globe. First of all, I salute to all the faculty members, those who are not belong to only the university or the higher education, but those who are nurture the small kids like the UKG or the nursery or the class 1 to K-12. I salute to them. Okay, during the pandemic, they educate our kids. They face a lot of problems from our school kids, not only the teachers, those who belong to IT or ITS services, but what about the music teacher? What about the yoga teacher? What about the psychology teacher? Right. So I salute to all the teachers, all the teaching fraternity professors, how fast they grab these technologies. And here, I throw the one message to the government of India. Before pandemic, our literate rate with respect to IT or ITS only 34%. During pandemic and right now, our literate rate is around 69%. Right. How fast we Indians adopt these technologies. How fast we adopt these technologies. Right. The second class kids or third class student, they are so familiar with the machines, the computers, the laptops, the smartphone. You will assume that, Sharma ji, after 5 years, 6 years, what is the future of our India? Right. You will train them. This pandemic, train our faculties that they are ready. 69% literate rate with respect to teachers. They are ready. Now point is that how we adopt this system in the blind mode, like offline, online, or those who are theoretical paper, those who are some boring papers. Sorry, I'm not say boring, I take my words back, that is not the boring, but what is the area of interest by the students? So we will deliver these papers through online, through with the help of digital, and more focus on the practical point of view. So it is up to us how we use these technologies, but I am that 100% sure, and I here imagine about the future of my mother India, that we will produce a good manpowers, trained manpowers, not from the college pass outs, but class 2nd to class 12th and college to college pass outs. They're equally trained in technology. They are equally they are equally trained. जहाँ हम लोग पहले कहते थे अपने बच्चों को मोबाइल मत देखो, आंखें खराब हो जाएंगी, जी. अब माँ बाप बोलते हैं बेटा क्लास अटेंड कर ले प्लीज़, टीचर ऑनलाइन आ गई है, मेरा फ़ोन ले ले, Right. पापा का फ़ोन ले ले, Right. और माँ बाप देख रहे हैं कि बच्चा क्लास अटेंड कर रहा है नहीं कर रहा है. जो दादा दादी ये कहते थे कि ऐसे पढ़ते हैं बच्चे वैसे पढ़ते हैं, वो दादा दादी खड़े होकर देख रहे हैं टीचर पढ़ा रहा है नहीं पढ़ा रहा है. Right. जो हम पहले कहते थे कि कॉलेजेस की क्वालिटी सुधर गई, जो प्राइवेट कॉलेजेस कहते थे कि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, दे फाइंड दैट द टीचर नॉट डूइंग एनीथिंग. वो भी ऑनलाइन क्लासेस में आ गए, भाई मेरा बेटा बैठा है आप कहाँ हो. Right. मॉनिटरिंग बढ़ गई. टीचर भी टाइम पे आने लगा, Right. पढ़ाने लगा, दादा दादी भी टीचर से कोऑर्डिनेट करने लगे, इंटरेक्शन बहुत अच्छा हुआ. जुम्बा क्लासेस, योगा क्लासेस, म्यूजिक क्लासेस, वहाँ हमने बच्चे को ट्रेन नहीं करा. मैंने देखा है अपनी आंखों से कि दादा दादी भी पीछे बैठे हुए हारमोनियम लेके बैठे हैं Right. कि पोता तो बजा नहीं रहा, चलो मैं ही बजाता हूँ. Right. तो वी आर नॉट हेयर ट्रेन ओनली द किड्स, वी आर ट्रेन द एंटायर फैमिली. Right. जो हमने इतने बुज़ुर्ग हमारे थे हैं, उनको भी हमने एजुकेट करने की कोशिश की. वो बहुत हमारा सौभाग्य कि वो हमारे साथ हैं. Right. तो हमने उनको भी ट्रेन किया, वो भी आगे बढ़ रहे हैं. बट हमें इस सिस्टम को तोड़ना नहीं है, स्कूल्स को एडवांस होना है. Right. और बस थोड़ा सा मेरा यहाँ एक पेन एरिया ये है, जो लोग कहते हैं कि हमने जनता को दान दिया, बहुत दान पुण्य के काम किए, मंदिर खोल दिए, मस्जिद बनवा दिए, गुरुद्वारे बनवा दिए, लंगर लगवा दिए, खाने को क्या क्या दे दिया. सुना है ना आपने? Right. बिल्कुल सुना. हाँ या ना? बिल्कुल सुना. मुझे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताओ पूरे इंडिया में जिसने फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को बैंडविड्थ दी हो, कि 2 GB का डाटा मैं हर बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ. Right. किसी ने दिया? तभी तो हमारे यहाँ 30% इलिटरेट रह गए. Right. आप कहते हैं कि मेरा नेटवर्क जो है, मेरा फ़ोन का नेटवर्क पूरे इंडिया के हर कोने में आता है, Right. और हम एक काउंट कर रहे हैं कि 0 कंप्लेंट. बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आते हैं, Right. देखा होगा, 0 कंप्लेंट. Right. अगर 0 कंप्लेंट पूरे इंडिया से है और वो कह रहे हैं कि 30% लोग पढ़ नहीं पाए, तो उन्होंने सोसाइटी के लिए क्या किया? Right. खाना फ्री दे दिया, लंगर फ्री दे दिया, चलो भी अच्छी बात है. क्या होगा? उनके धान खराब हो रहे होंगे, दे दिया दान में, दे दो भी, नहीं तो खराब हो जाएंगे, गवर्नमेंट को दिखाने के लिए CSR के पैसे में. Right.
उन्होंने 2 GB डाटा फ्री क्यों नहीं दिया बच्चे को डेली? मैं कोट कर रहा हूँ, नाम लेना नहीं चाहूँगा आपके चैनल से, नहीं तो बुरा मान जाएंगे, पता लगे अजय राणा कौन है, इसको पकड़ के लाओ। टॉप प्लेयर्स जो अपने को बिलियनरी बोलते हैं, जो भारत का सबसे अमीर आदमी बोलते हैं, राइट। क्या उसने कभी डाटा फ्री दिया? क्या किसी चीफ मिनिस्टर ने ये कहा कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल में, आपने ये तो कह दिया कि फीस मत दो, हाँ, बेचारा स्कूल कहाँ से चलाएगा? जो गवर्नमेंट वाला है आपने उसको तो बुला लिया टीचर को, राइट। क्या आपने गवर्नमेंट वाले बच्चों को लैपटॉप फैसिलिटीज़ दी? आपने प्राइवेट की फ़ीस माफ़ करवा दी, चलो अच्छी बात है, हमें पढ़ाना चाहिए, बट मैं तो चाहता है कि कोई मुख्यमंत्री ये कहता कि मैं चैलेंज करता हूँ सारे प्रोवाइडर्स को कि हर बच्चे को जो कॉलेज है, जो स्कूल है, वो 2 GB डाटा डेली फ्री ऑफ कॉस्ट देगा। कितने रुपए लगते हैं सर आप बताओ? It's hardly 150 rupees or 200 rupees per month. मंथ For a month. मंथ एक साल में मुश्किल से 2,000 रुपये का प्लान ले लो, Plan लो, 3 GB आप यूज़ करो, 3 GB use करो। 800 रुपये 500 रुपये में 3 महीने का मिलता है, डेली 2 GB आप डाटा यूज़ कर सकते हो। आपने सोचा किसी माँ बाप ने आवाज़ उठाई? Nobody's. एक माँ बाप की आवाज़ उठी कि मैं आंदोलन में बैठ गया हूँ कि आज मेरे घर में तो सारा पैसा तो ऑनलाइन डाटा बेस पे जा रहा है? तो जो अमीर थे ना वो और अमीर बनने लगे, और आपने देखा होगा ड्यूरिंग पैंडमिक वो और अमीर हुए हैं। The techie companies like नॉट टेकी यार, ये सर्विस प्रोवाइडर्स और अमीर हो गए भाई, उनकी रैंकिंग वर्ल्ड में और सुधर गई। क्यों सुधर गई? जितना ले सकते थे सबसे लिया। लिया। उस टाइम उनको ना सोसाइटी के लिए, अभी भी कर दें तो अभी भी अच्छी बात है, एटलीस्ट 1 साल तक कर दें, राइट। बट वो नहीं किया किसी ने। तो हमें टीचिंग मेथोडोलॉजी अब डिजिटल ही है या फिर समहाउ पैरेलल चलनी चाहिए? नहीं, वो तो एक जो ह्यूमन वैल्यूज़ हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो डिजिटल से नहीं आते, बट पूर्ण रूप से नहीं आते। पूर्ण रूप से नहीं है। आपको ह्यूमन टच होना चाहिए। राइट। एक आदमी से जब आप मिलते हैं, जैसे हम अभी दोनों बैठे हैं, जी। तो हमारी बातें ज़्यादा हो रही हैं। अगर हम जूम पे बैठते तो क्या होता? सर टाइम ख़त्म हो रहा है, काट दो। वो रिकॉर्ड ख़त्म हो रहा है, सर वो जाने वाला है, राइट। तो हम वहाँ डिपेंडेंट होते। हम दो तो बात कर रहे होते, मगर तीसरा आदमी और पैसे कमा रहा होता, वो चाहता कि और लंबा जाए। मगर इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि वो जो ब्यूटी है, जो ह्यूमन टच है, उसके लिए वो ज़रूरी। और मैं चाहूँगा कि 60% ह्यूमन टच ज़रूरी है, 40% हमें टेक्नोलॉजी बेस्ड होना चाहिए। और यही चीज़ जो है वो जो हमारे डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो उसको बहुत फास्ट अप्लाई करती हैं। आपको देखना, आप क्या कहते हैं अपनी कंट्री को? डेवलप्ड बोलते हैं, डेवलपिंग बोलते हैं? डेवलपिंग बोलते हैं। आप ये बोलते हैं, कभी आप IEEE की मेंबरशिप लेना, जी। वहाँ लिखा होता है डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज और थर्ड नेशन। तो आप देखना हम कहाँ आते हैं, ओके। तो हम उनके दिमाग में कहाँ आ रहे हैं? आप सोचना कभी, वो हमें एक्सेप्ट नहीं करते हैं। दुकान खोलने के लिए हर आदमी आने को तैयार है। मेरा बिगेस्ट मार्केट भी है। मार्केट तो किस लिए? कमा के लेके जाओ, अच्छी बात है, हमारे लोगों को बिजनेस मिल रहा है, हम कहते हैं रोजगार मिल रहा है, हम बोलते हैं चाइना का प्रोडक्ट। अरे चाइना का प्रोडक्ट रोकने के लिए हमें ऐसी टेक्नोलॉजी देना। हमारा कंपटीशन चाइना से क्या है? अगर चाइना के माल को हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं तो क्या हम वो चीज़ यहाँ नहीं बना सकते? हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की ड्यूटी तो बनेगी। हमें उन एंटरप्रेनर को आगे बढ़ाना चाहिए। मुझे तो आपको बोलना चाहिए, ठीक है, मैं आपको कंसल्टिंग करता हूँ, बट मैं ये नहीं चाहूँगा कि मैं आपकी एक्स अमाउंट अपनी नज़र आपके बिज़नेस पे रखूँ कि बिज़नेस का एक्स अमाउंट मेरे पास आएगा नहीं आएगा। आज मेरे फॉलोवर इतने हज़ारों लाखों क्यों हैं? मैंने आज तक ज़िंदगी में किसी से एक पैसा नहीं लिया होगा, नेवर एवर। मुझे अपनी ज़िंदगी का एक इंसिडेंस याद है, जब मैं फैकल्टी था तो मेरा डायरेक्टर बर्थडे सेलिब्रेट करते थे, तो सबने बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए 500 रुपये 50 रुपये सब कंट्रीब्यूट करते थे, और उस टाइम जो हम लोग 100 रुपये जमा करते थे सब लोग। और आप बिलीव करेंगे, मैंने साल भर दिया और हम किसी फैकल्टीज़ का उसको शर्ट दे देते थे, साड़ी दे देते थे। मेरे को बड़ा ज़िंदगी में क्या हुआ, जब मेरा बर्थडे आया उन्होंने बंद कर दिया। मैंने कहा यार मैंने साल भर पैसे दिए, अब मुझे भी तो दो। मैंने उस दिन कसम खाई कि अगर मैं किसी दिन डायरेक्टर बनाना, मैं कभी नहीं लूँगा पैसे, क्वांटिटी पे बिलीव नहीं करूँगा। मैंने आज तक अपनी लाइफ में कभी कॉन्ट्री अपने स्टाफ से और अपने कभी नहीं करी। मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरी टीम बढ़ाऊँ। मेरी टीम में 50 भी लोग हुए, 100 भी हुए, 150 भी हुए, मैं कहता हूँ मैं अपने खर्चे बढ़ाऊँगा। वो मैंने पंजाबियों से सीखा। वो क्या कहते हैं, हे वाहिगुरु खर्चे बढ़ा, खर्चे बढ़ाएगा तो आमदनी भी आएगी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे ना इस पॉइंट से कि अमीर होना चाहिए, सबको सोचना चाहिए, CSR का फंड्स आपको करना चाहिए। और जो हमारी जो सोसाइटी है, जो हमारे गांव के बच्चे जो नहीं पढ़ पाए, जो नॉर्थ ईस्ट में रह रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा एक्सटीरी में रह रहे हैं, जहाँ नेट तो आ रहा है बट पैसा नहीं दे पा रहे। आपने देखा होगा जो यहाँ से बिहार चले गए पैदल, तो गवर्नमेंट ने खाना खाने को दे दिया, ये कर दिया,
अरे कितने लोगों के बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे थे, वहाँ तो किसी माँ बाप ने आवाज़ नहीं उठाई। आप जानते हैं कितना कितना इंटरनेट का बिल जाता था? मिनिमम 4,000 रुपीज़। जब मैं घर से पढ़ा था, मेरे देखो मेरा भी ऑफिस चलता था, जी, मेरे दोनों बेटे ऑनलाइन पढ़ते थे, राइट, वाइफ भी अपनी किटी पार्टी ऑनलाइन ही होती थी उनकी। राइट, अब चार इंस्ट्रूमेंट लोग घर में लगा के अलग अलग बैठे हैं, तो कितना इंटरनेट जा रहा होगा? बट तो ये मैंने वहाँ तो कहीं कमेंट को बोला नहीं मैंने, बट मैं ये चाहूँगा कि हर चीफ मिनिस्टर को, एजुकेशन मिनिस्टर को ना सिर्फ और सिर्फ गाइडलाइंस को फॉलो करके नहीं ये सोचना चाहिए कि वर्ल्ड में क्या चल रहा है, राइट, वो आपका फोकस होना चाहिए। राइट सर, थैंक यू वेरी मच। सो सर, डिस्कशन बहुत अच्छा चलता जा रहा है, और जो वैल्यूज़ और जो आउटपुट और जो भी आपके फीडबैक, एक्सपर्टाइज, एक्सपीरियंस जो आपने शेयर किए, एक सीक्वेंस में हम एक अल्टीमेट एक रिजल्ट पर पहुंच रहे हैं। हम लोगों ने लीडरशिप की बात की, हम लोगों ने पैंडेमिक सिचुएशन में किन किन एरियाज़ को आप लोगों ने चैलेंज मान के कवर अप किया और आगे बढ़े, अपने इंस्टीट्यूशन को एक अलग लेवल पर लेकर के गए। हमने रिसर्च के बारे में बात करी कि रिसर्च फेलोअर्स के लिए क्या आपकी तरफ से मैसेज होना चाहिए। इट वाज वेरी नाइस। रिसर्च और इनोवेशन के ऊपर आपने जो इनोवेशन के बारे में स्पेशली जो आपने बताया कि इनोवेशन क्या होती है और क्या होनी चाहिए, वो अप्रोच बहुत अच्छी थी। मे बी शायद व्यूअर्स को बहुत पसंद आएगी। हमने उसके बाद बात करी है टीचिंग मैथोलॉजी के ऊपर कि प्रेजेंट में और फ्यूचर में टीचिंग मैथोलॉजी क्या होना, जिसमें आपने कहा कि ह्यूमन टच बहुत ज़रूरी है, लेकिन साइमल्टेनियसली हमें टेक्नोलॉजी को भी साथ में लेकर चलना होगा। इसी को कॉन्टिन्यूस में करते हुए एक लास्ट इम्पॉर्टेंट एक एजुकेशन का जो इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट है वो है कि पढ़ने लिखने के बाद जॉब्स तो चाहिए सर। एम्प्लॉयबल अगर नहीं होते हैं तो ना वो लीडरशिप कहीं अपनी दिखा सकते हैं, ना कहीं अपनी एक्सपर्टीज़ के थ्रू अर्न कर सकते हैं। अल्टीमेटली एक पढ़े लिखे बच्चे को एक सोशल रेस्पेक्ट भी जब भी मिलती है जब उसको एक अच्छी एम्प्लॉयबिलिटी मिलती है। अगर उसको एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता तो मुझे लगता है कि वो एक अच्छा लीडरशिप कहीं नहीं दिखा पाएगा। लीडर बनने के लिए प्लेटफॉर्म तो चाहिए। तो आज की डेट में एनईपी में भी ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। हमने रिसर्च की बात करी, एनईपी में बहुत बड़ा टॉपिक है रिसर्च, और गवर्नमेंट उसके ऊपर फोकस कर रही है। सिमिलरली इंटर्नशिप के ऊपर भी और ऑन जॉब ट्रेनिंग्स के ऊपर भी गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा फोकस है। तो मैं जानना चाहूँगा कि अजय सर क्या कहते हैं इस बारे में कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस and the roles and responsibility of internship and on-job trainings to get a good job or to get a good employability। क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ के लिए, इंस्टीट्यूशंस के लिए, स्कूल्स के लिए भी ये बहुत बड़ा चैलेंज है। आज आपने जितने बच्चों को पढ़ाया, आप तक एजुकेट किया, जब वो कहीं अच्छी जगह पर जाके प्लेस होता है तो आपको भी अच्छा फील होता है। The institution leaders also feels very good that the student, those who were taking the education from our institution, now as of the time somewhere and some of the place and some of the company, they are employable on that positions. So now I want to understand Ajay sir point of view, the importance of internships and on job trainings to get employability for every students as well as for the university. Please sir. थैंक यू सोम शर्मा जी। इनफैक्ट मैं एक और इसमें एडिशन करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ इंडिया में आज से ही ऑनलाइन एजुकेशन नहीं है, ये तो हज़ारों साल से है। आपने सुना होगा एक गुरु द्रोणाचार्य और एकलव्य। एकलव्य ने क्या एजुकेशन ली थी? ऑब्वियसली फिजिकल तो कभी नहीं मिला, कुछ होता, बट वो वहाँ से भी है। और जो आपने कहा स्किल एनहांसमेंट, ट्रेनिंग, एम्प्लॉयबिलिटी, इंटर्नशिप, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि इंटर्नशिप और ट्रेनिंग दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द कोर्स करिकुलम। और जो हमने काम किया ड्यूरिंग पेंडेमिक, वो हमने कोई नया काम नहीं करा। दैट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए एजुकेशनिस्ट। इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड द स्टूडेंट जॉब। हमने जॉब भी दिया पेंडेमिक में, ऑनलाइन जॉब दिए। अभी बच्चे हमारे ऑनलाइन काम कर रहे हैं, घर से बैठ के काम कर रहे हैं, वो भी हमने ऑनलाइन जॉब दिया था। और इनफैक्ट वी आर द फर्स्ट वन इन द कंट्री जिसने अराउंड 9,000 जॉब ऑनलाइन दिए। जहाँ मैं था 1 साल पहले हमने सारे जॉब ख़त्म कर दिए थे। मतलब हमारे पास बच्चे नहीं थे, अब कंपनी हमारे पास थी। तो बहुत रिक्वायरमेंट आई। और जो एक पॉइंट आता है कैंपस रिक्रूटमेंट, वो एक डिफरेंट होता है। इंटर्नशिप ये एक डिफरेंट वर्ड है। तो मैं आपको बोलना चाहूँगा जो इंटर्नशिप और इनोवेशन पॉइंट है, जो हमारे जितने भी प्रीमियम इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पर कहीं ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होता। वो पहले दिन से ही बच्चों को इनोवेशन लेके चलते हैं। वहाँ पर जो प्रोफेसर्स जिनको 10 साल एक्सपीरियंस है, 5 साल बड़े बड़े सीनियर प्रोफेसर्स हैं, वो हमेशा फर्स्ट ईयर को पढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका एक्सपीरियंस है, वो बच्चों को समझाते हैं। और जो फ्रेशर होता है वो हमेशा टॉप क्लास को पढ़ाता है, क्योंकि वो सिस्टम से नहीं हटके, वो कटिंग एज टेक्नोलॉजी से फैमिलियर होता है। थोड़ा इसको डिटेल करेंगे सर। जैसे कि सपोज एक बच्चा जब फ्रेशर कॉलेज से निकलता है, तो मैं बोलता हूँ कि मैं तो सपोज कुछ धुरंधर लोग होते हैं इंडस्ट्री के अंदर, मैं तो इससे पढ़ना चाहूँगा। और अगर कॉलेज में उसको किसी फ्रेशर ने पढ़ा दिया फर्स्ट ईयर में, तो उसकी क्या रेपुटेशन जाएगी? कॉलेज की रेपुटेशन भी गिर गई, बच्चे की मोटिवेशन भी डाउन हो गया।
बट जब वो पहले दिन मिला कि अच्छा मुझे तो ये फैकल्टी पढ़ाएगा, वाओ, ये तो मेरे लिए भगवान था। तो हमेशा टॉप प्रीमियम इंस्टीट्यूशंस में जो प्रोफेसर्स होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, वो हमेशा फ्रेशर क्लासेस को लेते हैं और वो वहाँ से एज अ जौहरी हीरो को फाइंड आउट करते हैं कि इसमें हीरे कौन से हैं, और उन हीरो को फर्स्ट डे से आइडेंटिफाई करके नेक्स्ट 4 साल तक ग्रूम करते हैं। उसको बोलते हैं मेंटर मेंटी कॉन्सेप्ट। तो वो प्रोफेसर्स पहले साल से ही उनको आइडेंटिफाई करना स्टार्ट करते हैं और फिर 4 साल तक अपने साथ लेके चलते हैं। ये कॉन्सेप्ट होता है प्रीमियम इंस्टीट्यूशंस में, इसलिए वो सस्टेन करते हैं। बहुत से कॉलेज में क्या हुआ, वो फ्रेशर आया कॉलेज से पास आउट को फर्स्ट ईयर क्लास दे दी, ना तो वो खुद ग्रूम है ना वो बच्चों को ग्रूम कर पाएगा। वो बोलते हैं फैकल्टी अच्छा नहीं है, बोलता है पढ़ाने वाला अच्छा नहीं है, इसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो दोनों में एक गैप आता है। तो मेरा जो पॉइंट है यहाँ पर कि ये है कि जो इंटर्नशिप है दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द कोर्स करिकुलम, वो ड्यूटी है हमारी, बट हम ड्यूटी को ऑनेस्टली कितना कर रहे हैं, यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है। बच्चों के लिए क्या है, मतलब वो क्योंकि स्टूडेंट्स ना सर इंटर्नशिप को इतना सीरियसली नहीं लेते। नहीं, सीरियसली हम उसको लेने नहीं देते। अच्छा सर। कर लाओ, कहीं से भी हो जाएगा, काम चल जाएगा। चलता है एटीट्यूड, जब तक आपका चलेगा आप प्राइज नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। एक आप अगर एक बच्चा 12th क्लास करने के बाद वो एनडीए खड़क वासला में जाके एक अच्छा ऑफिसर बन सकता है, वो 4 साल बाद एक अच्छा ऑफिसर पास आउट होकर निकल सकता है, ऐसा क्या चैलेंज है, क्या करते हैं वो लोग? उसको सुबह 4 बजे 5 बजे उठाते हैं, भगाते हैं, डिसिप्लिन सिखाते हैं, अच्छा ग्रूमिंग करते हैं, डिसिप्लिन लाइफ होती है, फिर वो एक अच्छा बनता है। यहाँ आप करके देखो, मानवाधिकार में चले जाएंगे सारे पेरेंट्स, हमारे बच्चे के साथ ऐसा किया, तो वो कहते हैं कि यार हम ट्रेनिंग, आपने कहा फैशन शो है या आपके स्टूडेंट्स हैं, आप उसको ग्रीड कर रहे हैं, उसको कारपेंट्री सिखा रहे हैं, स्किल प्रोग्राम, नहीं जी ये काम मेरा बच्चा करेगा, हम उसको देखेंगे इस तरीके से। और अगर वही बच्चा फॉरेन कंट्री में जाके कार चलाए तो हम बड़ा प्राउड महसूस करते हैं कि हाँ मेरा बच्चा अमेरिका में रह रहा है। यानी कि हमारे यहाँ पेरेंट्स भी इंटर्नशिप बहुत कुछ नहीं, स्किल्स को पेरेंट्स क्यों कर रहे हैं पता है? बच्चा बोलता है जब आता है, मैं तो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, एक 6 वीक से लेकर 2 महीने तक का, 2.5 महीने तक की ट्रेनिंग होती है, बहुत क्रूशल पीरियड होता है बच्चों का। राइट पेरेंट्स क्या बोलते हैं, हमारा बच्चा हमारे घर आएगा, आराम कर ले, हम अपनी कंपनी से ही सर्टिफिकेट दे देंगे। राइट। क्या वो इंडस्ट्री में गया, उसने सीखी? नहीं, एक सर्टिफिकेट लगाया, प्रोजेक्ट जूनियर ने बनाया, दिया, वो काम कंप्लीट हो गया। काम कंप्लीट करें। क्या जो टॉप कंपनीज हैं वो फ्रेशर से कोई टॉप क्वेश्चंस पूछती हैं? वो पूछती है एआई, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग। आप जानते हैं, 3 वर्ड मैं आपको बोलूँगा, एक होता है आईओटी, जिसमें वर्ल्ड में सिर्फ 5 to 7% काम करती हैं कंपनीज। ये माइक आपने बनाया, मैं आपको बोलूँ कि माइक आपको बना, बोला सर मैं तो उसको यूज़ करना जानता हूँ, बनाया, मेरे को नहीं आता क्या बनाया है। तो आईओटी पे सिर्फ 5 to 7% लोग काम करते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, रोबोट बना रहे हैं, टेक्नोलॉजी को लेके चल रहे हैं, डाटाबेस को काम कर रहे हैं। फिर होता है आईओई, इंटरनेट ऑफ वैल्यूज़, कि अब आप उस टेक्नोलॉजी को अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कैसे यूज़ कर रहे हो। जैसे ऑटोमेटेड फ्रिज हुआ, आपके ऑटोमेटेड एसी हुए, लाइट्स ऑटोमेटेड हुई, आप जहाँ अब ऑटोमेटेड कुछ नहीं होता, आप उनको सिस्टम को उससे फैमिलियर करते हैं, उसको बोलते हैं इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग। ये होता है मुश्किल से 5, नेक्स्ट 11, 10, 11, 15% मान लो, तो 20% ही तो हुआ। 20% व्हाट अबाउट द 80% ऑफ द पॉपुलेशन? वो आपका स्किल होना चाहिए, उसको बोलते हैं IOV। ये मेरा वर्ड है, आप कहीं नहीं सुनोगे, दैट इज़ इंटरनेट ऑफ वैल्यूज़। आप कैसे उसको यूज़ कर रहे हो। किस बच्चे को आज ट्विटर, व्हाट्सएप चलाना नहीं आता? सबको आता है ये, बट आप उसको कैसे टैकल कर रहे हो वो आपको पता होना चाहिए, वो अप्रोच होनी चाहिए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो स्किल इन्हांसमेंट है, जो स्किल डेवलपमेंट है, बच्चे पहले फाउंडेशंस को स्ट्रॉन्ग करें। जब भी कोई कंपनी कैंपस रिक्रूटमेंट में आती है, मेरा अपना 20 साल का एक्सपीरियंस है, वो कभी आपसे बड़े बड़े क्वेश्चंस नहीं पूछती, वो पहले रिटन टेस्ट लग देती है कि पहले इंग्लिश क्लियर करके दिखाओ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल, फिर वर्बल नॉन वर्बल क्लिक करके दिखाओ, रीजनिंग एनालिटिकल कैसा है, फिर इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछ लेगा कभी, अच्छा व्हाट अबाउट यू थिंकिंग अबाउट AI, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, आर्गुमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, डाटा, वो क्वेश्चन पूछेगा इंटरव्यू, वो आपसे वहाँ नहीं पूछेगा। जब आप टेस्ट ही क्लियर नहीं करोगे तो आगे कैसे पहुँचोगे। मेरा ये मानना है कि आपके पास 4 साल बहुत होते हैं, 3 साल बहुत होते हैं, और इसीलिए मैं आपसे जो आपके चैनल के थ्रू ही बोलना चाहूँगा, जब सतीश कौशिक साहब, सलमान खान साहब, अमिताभ बच्चन जी दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ते थे, तब क्या रेपुटेशन थी, और जब आज वो प्राउडली कहते हैं कि यस
मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के वो दिन याद है जब उस कमरे में हम ऐसा करते थे, हम वहाँ ऐसा करते थे। राइट, कभी उन्होंने बताया जब वो पढ़ते थे करके दिखाएं जरा, हम बाहर निकाल देंगे कॉलेज से आज। राइट, वो बाउंड्री पार करके दिखाए कोई। बाउंड्री पार करके, मगर जब कोई बड़ा बन जाता है तो कोई बोल सकता है मैं कूद जाता था, मैं सिगरेट भी पी लेता था कैंपस में। राइट, इसका मतलब आपने नियम नहीं माने उस टाइम, नियम नहीं माने उस टाइम, आपने हमें ही बनाया। राइट, भाई आपने चोरी की। अब एक मैं उस चीफ मिनिस्टर का नाम नहीं लूँगा, बहुत अच्छे चीफ मिनिस्टर होते, वो कहते थे कि मैं आईआईटी मुंबई में था, मैंने वहाँ रूम के अंदर ड्रिंक मैंने नहीं की थी, कोई दूसरा कर रहा था, तो मेरे पेरेंट्स आए तो बोलते कि बेटा तुम ना ड्रिंक इस आदमी के साथ मत रहा करो, जबकि उसी का बेटा ड्रिंक कर रहा था, तो उसने मेरा नाम बदनाम कर दिया। आप मुझे बताओ कौन से आईआईटी में ड्रिंक होती है कैंपस के अंदर? कहाँ कोई सिगरेट पी सकता है? नहीं पी सकता ना। अब हमें ये मैसेज नहीं देना बाहर मार्केट में। राइट, इसको बोलते हैं क्राइम, चोरी बोलते हैं। चोरी, उससे जो यंग पॉपुलेशंस होती है ना, वो उसको अपना इमेज बना लेती हैं। तो अगर आप चोरी करते हो, ऐसी चीज़ करते हो, तो आपको ये चीज़ शोभा नहीं देती है कि आप यंग जनरेशन को ख़राब बोलो। मैं एक बहुत अच्छे, अभी वन ऑफ द बेस्ट पर्सन इन आवर कंट्री, वो कहते हैं कि यंग जनरेशन को मेरा मैसेज है कि आप 8 घंटे काम करो, माँ बाप को टाइम दो, फिर ये काम करो, फिर वो कहते हैं कि टाइम मैनेजमेंट सीखो। टाइम मैनेजमेंट से, मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा, मैं कहा सर एक बात बताइए, आप बच्चों को मिसलीड क्यों कर रहे हो? आप गाइड थोड़ा ना कर रहे हो, तो उनको आप ट्रैक से उतार रहे हो। राइट, फिजिकल जो बॉडी हमारी और आपकी है, वो 40 साल तक हमारी बॉडी को कुछ नहीं होगा, राइट, सारा पार्ट ऑटोमेटिक चलेगा। कार खरीदते हो उसमें लिखा क्या होता है? 1 साल तक की सर्विस फ्री जी, होता है। कोई कहता है कि 5 साल तक सर्विस फ्री, 5 साल तक सर्विस फ्री, क्योंकि पार्ट चलते हैं। पार्ट चलता है, मैंने उनसे पूछा कि जब आप इस उम्र में थे तो आप कितने घंटे काम करते थे? आपने अपनी बुक में लिखा हुआ है राइट, कि मैं 18 से 20 घंटे पढ़ता था, राइट, तो आप इन्हें क्यों मिसलीड कर रहे हो कि 8 घंटे पढ़ो? 8 घंटे में, क्यों? क्योंकि कल को कोई दूसरा आदमी आप जैसा ना बन जाए। राइट, भाई आप नहीं चाहते ना कोई दूसरा आदमी आप जैसा बने। राइट, अगर आप चाहते हो कि हर आदमी आप जैसा बने, तो वो उम्र याद दिलाओ उनको जब आप उस उम्र में थे। मैं बहुत से लोगों से मिलता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस, हम ऐसा काम करते थे, हम उस बाउंड्री से कूद जाते थे, हम पैसा दे के, मैं उनका देखता रहता, मैं बेटा ऐसा होता था? नहीं होता ऐसा। हम फंस जाएंगे सर, मुझे नौकरी से कोई निकाल देगा। जी, एज अ वाइस चांसलर मेरे कैंपस में अगर कोई सिगरेट पी रहा है जी, या मेरे कैंपस में कोई ड्रिंक कर रहा है, दैट इज़ अ क्राइम। इट्स अ क्राइम, और कल को कोई मिनिस्टर बन जाए, चीफ मिनिस्टर, बोले अच्छा मैं ऐसा करता था, हाँ, अब उस पर विश्वास मत करना ले समय पे। वो आदमी अच्छा नहीं है, राइट, 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 वो आदमी अच्छा नहीं है जो जहाँ से पढ़ के आया और वहाँ उसके बारे में बोले ऐसा और झूठ बोले, तो ये गलत बात है। मेरा पॉइंट ये है जो स्किल डेवलपमेंट के लिए हमने आपको अपॉर्चुनिटी, उससे आप इनजस्टिस मत करो। वो 6 वीक को और 1 साल को बहुत ऑनेस्टी से करो। और मेरा एक डायलॉग बहुत अच्छा है, आज आप भागोगे और वो 6 महीने 1 साल होता है, आप अगर आज आप भागोगे और 6 महीने का टाइम है, तो आने वाली ज़िंदगी के 60 साल आराम करोगे। राइट, 6 महीने बोल रहा हूँ, चल, राइट, आपने 5 महीने आराम भागे राइट, तो कितने साल आराम करोगे? 50 साल। 50 साल, 4 महीने भागे तो 40 साल, 40 साल, और 1 महीना भागे तो सिर्फ 10 साल। 10 साल, फिर आप कहते हो अनएम्प्लॉयमेंट। निकाला उनको जाता है जो एक्सपीरियंस वाले होते हैं, फ्रेशर को कोई निकालता है? प्रेशर को कोई नहीं, क्यों निकालता है? क्योंकि उसको मौका मिल जाता है कि ये आदमी काम नहीं कर रहा है, इसको मुझे निकालना है। राइट, जो काम नहीं करेगा उसको निकाला जाएगा। राइट, तो आपके हिसाब से इंटर्नशिप करिकुलम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसमें आप 6 महीने जो लगाओगे, जो 2 महीना आप 20 साल तक आराम करोगे, वो आपको नॉलेज देगा, आउट ऑफ द बॉक्स देगा, वही ज़िंदगी भर आपके काम आएगा। जब मैं पढ़ता था उस टाइम एआई नहीं आता था, डीप लर्निंग नहीं आता था, मशीन। अब मेरे से पूछो, चलो मेरे पेटेंट हैं एआई, मशीन लर्निंग, डीप, क्योंकि मैंने अपने को रोका नहीं ना। जी, मैं अपनी पढ़ने की क्षमता कोई डाउन कर देता, क्या फ़र्क पड़ता है? आप में से पूछते सर चलो बताओ AR VR में क्या अंतर है, जी, सर मशीन लर्निंग क्या होता है, सर ये AI क्या होता है, मैं आपको ना बता पाता, आप बोलते शर्म आ रही है सर, आप कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर और आपको ये नहीं पता। जी, नहीं, तो मुझे अपने को अपडेट करना पड़ेगा। अब मैं एक यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर हूँ, तो तुम्हें लॉ भी आना चाहिए, एजुकेशन भी आना चाहिए, जितना आना चाहिए। राइट, भाई क्या आना चाहिए, बार काउंसिल के नियम क्या हैं, एजुकेशन के नियम क्या हैं, AICT, तो उन सबको ना मुझे पता होना चाहिए। जी, मेरा यही पॉइंट रहता है, और ये मेरा मैसेज आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू है कि बच्चे उस इंटर्नशिप को मजाक में ना लें। आज जितना भागोगे, आने वाले समय में उतना ही आराम करोगे, और आज तुम जितना आराम करोगे, ज़िंदगी भर भागते रहोगे। और फिर आप बोलोगे, फिर पता है क्या बोलोगे आप? जी, बहुत से मोटिवेटर बोलते हैं, जी, मैं सबसे पीछे बैठता था क्लास में, और देखो आज मैं कहाँ पहुँच गया हूँ। वो अपनी तारीफ खुद करवाते हैं, बोलते हैं मैं ऐसा था। मेरे से कितने लोग बोलते हैं? हार्डली दुनिया के 1.1% बोलते हैं। जी, जो कामयाब होते हैं, जो आगे बैठते हैं, जो इन्वॉल्वमेंट, वो दुनिया को चलाते हैं।
कभी कोई लीडर ये नहीं बोलता मैं पीछे बैठता था। एलान मस्क, मार्क ज़करबर्ग, बिल गेट्स, आपका मुकेश अंबानी जी, क्या ये बोलते हैं कभी मैं पीछे बैठता था? अनिल अंबानी जी बोलते हैं कभी? नेवर एवर। अब ये तो हमें सीखना है। आप मुझे एक बात बताओ, आप, मैं अभी हर आदमी की रिस्पेक्ट करता हूँ। मेरे लिए हर चीफ मिनिस्टर, मैं जिस राज्य में रहता हूँ, मैं अभी दिल्ली में आया हूँ तो मेरे लिए यहाँ का राजा तो केजरीवाल जी हैं, क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर हमने बनाया है उनको। मैं नोएडा जाऊँगा तो वहाँ का राजा मेरे लिए योगी जी हैं। उससे पहले वहाँ का प्रधान है, सोसाइटी का मेरा हेड है, तो मेरा सबसे पहले सोसाइटी का हेड है, फिर वहाँ का प्रधान है, फिर वहाँ का विधायक है, फिर वहाँ का सांसद है, फिर वहाँ का चीफ मिनिस्टर है। आप मुझे बताइए, अगर मैं किसी शहंशाही के ज़माने में होता, आज से 100 साल पहले, तो वहाँ जिले इलाही नहीं कर रहा होता। जिले इलाही कहता उसको फांसी दे दो, तो मुझे लटका देते हो फांसी पे। तो आज मैं इनकी इज्जत क्यों नहीं करता हूँ? अगर मेरे देश का कोई भी नेता है, अभिनेता है, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, हमें उसको उसी जिले इलाही की तरह सलाम करना है, नमस्ते करनी है, इज्जत करनी, बिकॉज वो शहंशाह हिंदुस्तान है। अगर वो शहंशाह हिंदुस्तान जाके पानी में डुबकी लगा रहा है तो ये बड़ी बात है। इतनी ठंड में नहीं करता कोई भी भाई। अरे मैं खुद नहीं करूँ, उससे सीखो यार। वो किस उम्र में, मतलब ऐसे में 100 जन्म भी लूँ ना, मुझे ऐसा आदमी नहीं मिलता, बिल्कुल नहीं। तो हमें क्या है, अपने राजा जो हमारे पहले हमारे मुख्यमंत्री रहे हैं हमारे स्टेट के, हमें उनकी भी रिस्पेक्ट करनी है। तो ये ट्रेनिंग है, ये स्किल डेवलपमेंट है। मैं, हम लोग यहाँ फेथ नहीं करते कि कोई हमारा गॉडफादर आएगा, हमें किसी गवर्नमेंट का वीसी बना देगा, हम यहाँ बन जाएंगे। वी आर ऑन आवर मेरिट्स, किसी के क्रेडिट पे नहीं है। आज मेरी ज़िंदगी में कोई मुझे ये नहीं कह सकती कि मैंने इसको बनाया। सॉरी, खुद बने हैं भाई। काबिलियत थी, किसी ने नहीं बनाया। इसलिए मैं बच्चों से कहना चाहता हूँ, आज काम करोगे। आई एम द 2 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट, मेरे काम आते हैं। आई हैव मैक्सिमम ऑफ पेटेंट्स, काम आते हैं। पब्लिकेशंस काम आते हैं। पैसा एंड ऑफ द डे बोलता है कोई मालिक, मेरे यहाँ आओगे तो मुझे कितना कमा के दोगे, तभी तो मैं रखूँगा। कोई मालिक की परिभाषा क्या होती है? मालिक, माँ के जैसा दिखने वाला। माँ भी पेट भरती है और मालिक भी पेट भरता है, तो वो मेरा माँ है जो मेरा पेट भर रही है। तो मुझे, अगर वो मेरे पे 10 रुपये दे रहा है तो मुझे उसको 1000 रुपये देना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये मैंने पहले किया जिस ऑर्गेनाइजेशन में था, और ये मैं यहाँ कर रहा हूँ जिसके साथ हूँ। आने वाले अब 2 समय में देखना मेरा ये यूनिवर्सिटी कहाँ जाएगी। ये मेरा आपको इस चैनल के थ्रू प्रॉमिस है। अगर ये यूनिवर्सिटी आपको मैं आने वाले 2 साल में कहाँ लेके जाऊँगा, यही मेरा उन बच्चों से रिक्वेस्ट है। उन बच्चों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि उस एजुकेशन के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को नर्चर करो, कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ को फैमिलियर रहो, और आप जैसे जैसे फेला और बाकी सब ऑर्गेनाइजेशन उनकी हेल्प कर रहे हैं, उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करो। आई एम सो थैंकफुल टू यू। मैं आपसे 1-1.5 घंटे से बात कर रहा हूँ। ऐसे कोई लोग नहीं होते। कौन समाज में होगा जो कहेगा मैं आपकी मदद करने को तैयार हूँ? मैं तो थैंक गॉड मैं आपके यहाँ खुद चल के क्यों आया। मुझे अपने बच्चों की ट्रेनिंग करानी है आपसे। ये सौभाग्य आपका नहीं है कि अजय राणा यहाँ आए और वाइस चांसलर यहाँ आए बैठे। ये सौभाग्य मेरा है कि अगर मेरे 10 बच्चे भी फॉरेन कंट्री चले गए, मेरे 50 बच्चों को भी अगर नौकरी मिल गई, तो मैं उनके माँ बाप को कितना अच्छा चेहरा दिखा पाऊंगा कि देखो वाह, आज मैंने अगर 3 घंटे आपको दिए, कल को आने वाले समय मेरे 30 बच्चे कहीं प्लेस्ड हो गए, तो उनके माँ बाप मुझे 60 आँखें, 60 नहीं 120 आँखें, कितनी दुआएं देंगी मुझे। तो ये मेरे लिए एक पॉइंट है सर। ट्रेनिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन देयर लाइफ। हेयर आई नीड योर हेल्प, हेयर आई नीड द हेल्प द अदर पार्टनर्स। कि माइंड को समझो, कॉलेज और यूनिवर्सिटी को मत समझो। आई अगेन रिपीट, माइंड को समझो, और तभी प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट जो है ना, वो छोटे छोटे कॉलेज से निकलते हैं, वो मॉडर्न स्कूल से निकलते हैं। थैंक यू वेरी मच अजय सर। बहुत अच्छा डिस्कशन आपके साथ रहा। फैला टॉक सीरीज़ का ये बहुत इंपॉर्टेंट एक सेगमेंट है जिसमें हमने डॉक्टर अजय राणा के साथ बात की। हमने रिसर्च के ऊपर बात करी, हमने ट्रेनिंग इंटर्नशिप्स के ऊपर बात करी, हमने टीचिंग मैथोलॉजी के ऊपर बात करी, जहाँ अजय सर ने अपने व्यूज़ बहुत खुल करके और अपने बिल्कुल फर्स्ट फेज़ एक्सपीरियंस के साथ शेयर करके हमारे सामने रखे। इसी तरह के शोज़ हम आगे करते रहेंगे। मैं फैला फाउंडेशन, फेडरेशन ऑफ एजुकेशन लीडर एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स की तरफ से अजय सर को बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। अगले सीरीज़ में फिर मिलते हैं एक नए एजुकेशन लीडर, एक नए हायर एजुकेशन लीडर के साथ। थैंक यू। नमस्कार।